کیا آپ جانتے ہیں کہ 22ویں روزے کی قبولیت کا وہ کون سا مخفی پہلو ہے جو عام انسان کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے؟ مگر کنز الایمان اور بہار شریعت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی دن تقدیر کے قلم سے وہ فیصلے لکھے جاتے ہیں جو آنے والے پورے سال کی خوشحالی کا سبب بنتے ہیں۔ معزز سامعین، ذرا غور کریں کہ جب آپ 22ویں روزے کی سحری کا لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں تو اس وقت عرش الہی کے سائے تلے آپ کی بخشش کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں تجسس کی انتہا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر مومن یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی دعا کس مقام پر پہنچی ہے۔ میرے بھائیوں، 22ویں روزے کی سب سے بڑی حیرانی یہ ہے کہ اس دن کی افطاری کے وقت رب کائنات خود اپنے بندوں کی پکار کا جواب دینے کے لیے بے چین ہوتا ہے، اور جو شخص اس خاص گھڑی میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اس کا نام جہنم سے آزاد ہونے والوں کی فہرست میں سر فہرست آ جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا آپ کی ذمہ داری اس لیے بنتی ہے کیونکہ شاید آپ کا ایک کلک کسی بھٹکے ہوئے انسان کو 22ویں روزے کی برکات سے جوڑ دے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ معزز سامعین، 22واں روزہ دراصل اس عظیم الشان منزل کا پہلا زینہ ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس دن کی روحانیت ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم 1000 مہینوں سے افضل رات کے انوارات کو سمیٹ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے، مگر 22ویں روزے کی فضیلت اس لیے بھی منفرد ہے کیونکہ یہ جفت رات کا وہ آغاز ہے جہاں سے سکون قلب کی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں 22ویں روزے کے دن رزق میں اچانک برکت محسوس ہونے لگتی ہے؟ اس کا راز اس پوشیدہ عمل میں چھپا ہے جو سلف صالحین بڑی رازداری سے انجام دیتے تھے، اور آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے گھروں میں بھی رحمتوں کا نزول ہو سکے۔ معزز سامعین، 22ویں روزے کی تپش میں جو پیاس ایک روزہ دار محسوس کرتا ہے وہ دراصل اس کی روح کی پیاس بجھانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور اسے اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں فرشتے اس کے قدموں کی دھول کو اپنے پروں سے صاف کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی گفتگو نہیں، بلکہ ایک ایسی سچائی ہے جو آپ کے ایمان کو جلا بخشے گی اور آپ کو اس بات پر مجبور کر دے گی کہ آپ 22ویں روزے کا ایک ایک سیکنڈ عبادت الہی میں گزاریں۔ میرے بھائیوں، اس کائنات کا ذرہ ذرہ 22ویں روزے کے دن تسبیح پڑھتا ہے، اور جو انسان اس تسبیح میں شامل ہو جاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اس لیے اس معلومات کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر پھیلائیں تاکہ ہر مسلمان 22ویں روزے کی اصل روح سے واقف ہو سکے۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک دن کی تمام تر سعادتیں نصیب فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا کرے، آمین۔ معزز سامعین اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا وہ عظیم اور مبارک لمحہ بالکل قریب آ چکا ہے جسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، اور 22ویں روزے کی یہ پرنور رات دراصل اس عظیم منزل کا وہ پہلا دروازہ ہے جو ہمیں کائنات کی سب سے قیمتی گھڑیوں تک لے جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کیوں 22ویں روزے کی جفت رات کو صوفیہ اور اولیاء اللہ اتنی اہمیت دیتے تھے؟ اس کا اصل راز اس پوشیدہ تعلق میں چھپا ہے جو 22ویں شب اور لیلۃ القدر کے درمیان ایک مضبوط پل کی طرح قائم ہے۔ کنز الایمان کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ پاک نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، اور بہار شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس رات کی تلاش کا اصل سفر 22ویں روزے کے سورج ڈھلتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کریں کہ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ 22ویں روزے کی تھکاوٹ کے باوجود اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اس وقت آسمانوں پر آپ کے ذکر کے چرچے ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور 22ویں روزے کی روحانیت آپ کے دل کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ ان نوری مخلوقات کی موجودگی کو محسوس کر سکیں۔ معزز سامعین، اس ویڈیو کو شیئر کرنا آپ پر اس لیے لازم ہے کیونکہ بہت سے لوگ صرف طاق راتوں کے انتظار میں جفت راتوں کی برکات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ 22ویں شب وہ تیاری کا وقت ہے جو آپ کو 25ویں یا 27ویں شب کے لیے روحانی طور پر تیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، 22ویں روزے کی ایک خاص کرامت یہ ہے کہ اس دن کی گئی توبہ آپ کے اندر وہ عاجزی پیدا کرتی ہے جو لیلۃ القدر کو پانے کی پہلی شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور 22ویں روزے کا سورج غروب ہوتے ہی وہ تلاش اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 22ویں شب کی خاموشی میں ایک ایسی صدا چھپی ہے جو صرف ان لوگوں کو سنائی دیتی ہے جن کے دل عشق الہی سے منور ہوتے ہیں؟
मुअज़्ज़िज़ सामईन, लैलतुल क़द्र का 22वें रोज़े से ताल्लुक़ इतना गहरा है जैसे रूह का जिस्म से होता है, क्योंकि यही वो दिन है जब मोमिन अपने नफ्स को मुकम्मल तौर पर काबू में करके उस मुकाम पर पहुंचता है जहां दुआ की कबूलियत के तमाम पर्दे उठा दिए जाते हैं। मेरे भाइयों, इस कायनात के मालिक ने लैलतुल क़द्र को छुपा कर रखा है ताकि हम हर रात उसे तलाश करें, और 22वें रोज़े की इबादत उस तलाश का वो पहला सच्चा कदम है जो हमें महरूमी से बचाता है। ज़रा सोचें कि अगर लैलतुल क़द्र 22वीं और 23वीं की दरमियानी रात में आ जाए तो क्या आप उसके इस्तक़बाल के लिए तैयार हैं? इसीलिए 22वें रोज़े का ये स्क्रिप्ट आपके लिए एक पैगाम बेदारी है, ताकि आप गफलत की नींद से बेदार होकर इस नूर को समेट सकें जो हर तरफ बिखरा हुआ है। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, 22वें शब का पोशीदा राज ये भी है कि इस रात में तकदीर के वो फैसले कलमबंद किए जाते हैं जो आने वाले साल में आपकी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम उन खुश नसीबों में शामिल हो जाए जिनकी मग़फ़िरत का फ़ैसला लैलतुल क़द्र में होना है, तो 22वें रोज़े की हर सात को गनीमत जानें। मेरे भाइयों, इस गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है, बशर्ते कि आप इसे सिर्फ कानों से न सुनें बल्कि दिल की गहराइयों में उतारें। 22वें रोज़े की बरकत से आपके रिस्क में वो कुशादगी आ सकती है जिसका आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि जब बंदा लैलतुल क़द्र की नीयत से 22वीं शब को बेदार रहता है तो अल्लाह पाक उसकी तलब को देखकर अपनी रहमतों के ख़ज़ाने खोल देता है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, याद रखें कि शैतान इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक होता है ताकि आपको इन कीमती लम्हात से दूर रखे, लेकिन आपने 22वें रोज़े के इस ख़ास स्क्रिप्ट के ज़रिए अपने ईमान को वो तक़वियत देनी है कि कोई भी रुकावट आपको ज़िक्र इलाही से ना रोक सके। मेरे भाइयों, 22वें रोज़े की कबूलियत का ताल्लुक़ बराह रास्त आपके इखलास से है। जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए खैर चाहेंगे, उतना ही जल्दी आपको लैलतुल क़द्र का सुराग मिलेगा। इस वीडियो को हर उस मुसलमान तक पहुंचाएं जो रमज़ान की बरक़ात समेटना चाहता है, क्योंकि हो सकता है कि 22वें रोज़े की ये मालूमात किसी के लिए बख्शिश का ज़रिया बन जाए। मुअज़्ज़िज़ सामईन, 22वीं शब की वो ख़ास दुआ जो अर्श को हिला देती है, वो दरअसल वही है जो बंदा अपनी आजिज़ी का एतराफ़ करते हुए मांगता है। लैलतुल क़द्र के अनवारात का फैज़ान 22वें रोज़े से ही शुरू हो जाता है, और जो खुशनसीब इस फैज़ान से फैज़याब हो जाते हैं उनके चेहरों पर एक अलग ही नूर होता है। मेरे भाइयों, 22वें रोज़े का पैगाम ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालें और इस ख़ास रात की तलाश में ख़ुद को मिटा दें ताकि वो अबदी ज़िंदगी पा सकें। मुअज़्ज़िज़ सामईन, 22वीं शब के इस ताल्लुक़ को समझने के लिए आपको अपने बातिन की आंखें खोलनी होंगी, क्योंकि ये मादी दुनिया आपको सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ें दिखाती है, मगर असल ख़जाना तो इन रूहानी रातों में छुपा है जो 22वें रोज़े से जुड़ी हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक आपकी हर जायज़ मुराद पूरी फरमाए और आपको लैलतुल क़द्र की वो बरक़ात अता करे जिनका ज़िक्र कलाम इलाही में मौजूद है। 22वें रोज़े की इस पुरअसर गुफ्तगू को अपने सीने से लगा कर रखें और आखिरी अशरे की हर घड़ी को ऐसे गुजारें जैसे ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी मौका हो। मुअज़्ज़िज़ सामईन, 22वीं शब की फजीलत के हवाले से ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि इस रात की एक नेकी का अजर आम रातों के मुकाबले में करोड़ों गुना ज़्यादा है, सिर्फ इसलिए कि ये लैलतुल क़द्र के हमसाये में वाक़े है। मेरे भाइयों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और 22वें रोज़े की इस नूरानी फ़िज़ा में अपने रब को मना लें, ताकि जब लैलतुल क़द्र आए तो हम इसके अनवारात वसूल करने के लिए पहले से पाक व साफ़ हो चुके हों। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो और हमें 22वें रोज़े की तमाम तर पोशीदा बरक़ात नसीब फरमाए। आमीन। मुअज़्ज़िज़ सामईन और मेरे प्यारे भाइयों, तारीख़ इस्लाम के औराक जब हम पलटते हैं तो हमें 22वें रोज़े की वो अजीम उस शान दास्तान नज़र आती है जिसने कुफ्र के ऐवानों में लर्ज़ा तारी कर दिया और इस्लाम के परचम को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। क्या आप जानते हैं कि 22वें रोज़े की तारीख वो दिन है जब हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी लकीर खींची गई जिसने रहती दुनिया तक के लिए मुसलमानों को गैरत और शजात का नया सबक दे दिया। कंजुल ईमान और बहार शरीयत के मुताले से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के नेक बंदों ने 22वें रोज़े की प्यास और तपिश में वो अजीम कारनामे अंजाम दिए जिनकी मिसाल तारीख पेश करने से कासिर है। मेरे भाइयों, ज़रा इस मंजर का तसव्वुर करें जब सहाबा किराम और बुजुर्गान दीन 22वें रोज़े की हालत में मैदान अमल में निकलते थे और उनके चेहरों पर रोज़े की वजह से वो नूर होता था जो दुश्मन के दिलों को खौफ से भर देता था। इस वाक़े का सबसे हैरान कुन पहलू यह है कि 22वें रोज़े की इस खास घड़ी में गैबी मदद का ऐसा नुज़ूल हुआ जिसने मादी असबाब को हेच साबित कर दिया। मुअज़्ज़िज़ सामईन,
आपने अक्सर जंगों के किस्से सुने होंगे, लेकिन 22वें रोजे से मंसूब ये तारीखी वाकया आपके ईमान को इस तरह ताज़ा कर देगा कि आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कुर्बानी की वो इंतहा है जिसकी खुशबू आज भी 22वें रोजे की हवाओं में महसूस की जा सकती है। मेरे भाइयों, इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि तारीख के ये सुनहरी अब्वाब आमतौर पर लोगों की नज़रों से ओझल रहते हैं और हमारा मकसद आपको अपनी असल जड़ों से जोड़ना है। 22वें रोजे का ये वाकया हमें ये सिखाता है कि जब ईमान मजबूत हो और रोजा जैसा ढाल पास हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। मुअज़्ज़िज़ सामईन, तारीख के इस पोशीदा राज से पर्दा उठाते हुए हमें ये मालूम होता है कि 22वें रोजे की वो रात कितनी पुरजलाल थी जब इस्लाम के सिपा सालारों ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर फतह की दुआ मांगी और फिर चश्मे फलक ने देखा कि कैसे फरिश्ते उनकी मदद के लिए क़ितार दर क़ितार उतरे। मेरे भाइयों, 22वें रोजे की करामात का सिलसिला सिर्फ माजी तक महदूद नहीं, बल्कि आज भी जो शख्स इस तारीखी वाक़े के रूह को समझकर 22वां रोज़ा रखता है, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी के तमाम मार्के आसान कर देता है। ज़रा गौर करें कि 22वें रोजे की इस प्यास में वो क्या ताकत थी जिसने बड़े बड़े किलों को ज़ेर कर दिया। ये ताकत दरअसल इस यकीन में थी कि अल्लाह हमारे साथ है, और यही वो पैगाम है जो 22वें रोजे का ये अजीम वाक़या हमें देना चाहता है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, इस वाक़े की तफसीलात में जब हम गहराई तक जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि 22वें रोज़े के दिन ज़मीन और आसमान के दरमियान एक ख़ास राब्ता कायम हो जाता है, जिसकी वजह से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। मेरे भाइयों, आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे असलाफ 22वें रोज़े को इतनी अकीदत से मनाते थे? इसकी वजह वो रूहानी फुतूहात थीं जो इस दिन के साथ जुड़ी हुई हैं। इस गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ आपके लहू में हरारत पैदा करेगा और आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप इस उम्मत के फ़र्द हैं जिसके बुज़ुर्गों ने 22वें रोज़े की हालत में तारीख़ के धारे मोड़ दिए थे। मुअज़्ज़िज़ सामईन, 22वें रोज़े का ये तारीख़ी मौजज़ा हमें बताता है कि कामयाबी का रास्ता सिर्फ मादी वसाइल से नहीं, बल्कि अल्लाह की नुसरत और रोज़े की बरकत से मिलता है। मेरे भाइयों, इस वीडियो को शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारी नई नस्ल को मालूम हो सके कि उनके आबाओ अजदाद 22वें रोज़े की अज़मत से किस तरह वाकिफ़ थे और उन्होंने कैसे इस दिन को अपनी बका का ज़रिया बनाया। 22वें रोज़े की शाम जब सूरज अपनी सुर्खी बिखेर रहा होता है तो इस वक्त की खामोशी इस तारीख़ी वाक़े की गवाही देती है कि हक़ हमेशा गालिब रहता है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, इस वाक़े के पीछे छुपा सबसे बड़ा राज ये है कि 22वें रोज़े की दुआ कभी रद्द नहीं होती, ख़ास तौर पर जब वो किसी नेक मकसद के लिए मांगी जाए। मेरे भाइयों, 22वें रोज़े की बरकत से अल्लाह पाक आपके दुश्मनों को मग़लूब फरमाए और आपको वो इस्तिक़ामत अता करे जो 22वें रोज़े के इन गाज़ियों का शेवा थी। इस स्क्रिप्ट के ज़रिए हमने कोशिश की है कि आप तक वो तारीख़ी हकीकत पहुँचाएँ जो आपके दिल में इस्लाम की मोहब्बत को और ज़्यादा पुख्ता कर दे। मुअज़्ज़िज़ सामईन, 22वें रोज़े का ये दिन महज भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये अपनी तारीख को याद करने और उससे सबक लेने का दिन है, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में वही तब्दीली ला सकें जो इस वाक़े के नतीजे में आई थी। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक हम सबको 22वें रोज़े की तमाम तारीख़ी और रूहानी बरक़ात से हिस्सा अता फ़रमाए और हमें 22वें रोज़े की लाज रखने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। मुअज़्ज़िज़ सामईन और मेरे प्यारे भाइयों, 22वें रोज़े की ये पुरनूर सातें अपने अंदर रिस्क के वो ख़जाने छुपाए हुए हैं जिनका इदराक सिर्फ वही कर सकता है जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत और उसके भरोसे से लबरेज हो। क्या आप अपनी ज़िंदगी की तंगदस्ती से परेशान हैं या रिस्क की बंदिश ने आपके घर के सुकून को मुतासिर कर रखा है? तो याद रखें कि 22वें रोज़े की ये ख़ास घड़ी आपकी तमाम परेशानियों का हल लेकर आई है। कंजुल ईमान और बहार शरीयत की तालीमात के मुताबिक अल्लाह पाक अपने उन बंदों को कभी महरूम नहीं रखता जो 22वें रोज़े की बरकत से गैबी मदद के तालिब होते हैं। मेरे भाइयों, रिस्क का मामला सिर्फ मेहनत से वाबस्ता नहीं होता, बल्कि इसमें अल्लाह की वो पोशीदा रेज़ा शामिल होती है जो 22वें रोज़े जैसे मुबारक दिनों में जोश मारती है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज इस नशिस्त में हम उस अजीम वजीफ़े और अमल का जिक्र करेंगे जो 22वें रोज़े की रूहानियत से जुड़ा है और जिसके करने से आपके घर में बरकत का वो सैलाब आ सकता है जो तमाम महरूमियों को बहा ले जाए। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करें, क्योंकि क्या मालूम आपकी एक शेयरिंग से किसी गरीब का चूल्हा जल उठे और उसके रिस्क में बरकत का रास्ता खुल जाए। मेरे भाइयों, 22वें रोज़े का वो पोशीदा राज ये है कि उस दिन आसमान से गैबी मदद के फरिश्ते उन लोगों की तलाश में होते हैं जो अपने रब पर कामिल यकीन रखते हुए रिस्क हलाल की दुआ मांगते हैं।
ज़रा तसव्वुर करें कि जब आप 22वें रोज़े की प्यास बर्दाश्त करके अपने रब से सवाल करते हैं तो कायनात का मालिक फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उसकी पुकार को सुन लिया है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 22वें रोज़े का वजीफ़ा दरअसल वो चाबी है जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है। हमारे असलाफ फरमाते हैं कि 22वें रोज़े के दिन की जाने वाली तस्बीह आपकी नस्लों तक के रिस्क में बरकत डाल देती है। मेरे भाइयों, इस कायनात में कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसे अल्लाह रिस्क ना देता हो, मगर 22वें रोज़े की खुसूसियत ये है कि इस दिन रिस्क आम से हटकर रिस्क खास तकसीम किया जाता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस गुफ्तगू को आखिर तक गौर से सुनें, क्योंकि जो कलिमात मैं अब कहने जा रहा हूँ वो आपके नसीब को जगा सकते हैं। 22वें रोज़े की असर से मगरिब का वक्त वो सुनहरा मौका है जब गैबी मदद के दरवाजे चौपट खोल दिए जाते हैं। अगर आप इस वक्त सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करते हुए रिस्क की दुआ मांगे तो यकीन जानिए कि गैब से ऐसे असबाब पैदा होंगे कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। मेरे भाइयों, 22वें रोज़े का पैगाम ये है कि हम अपने वसाइल पर नहीं बल्कि अल्लाह के ख़जानों पर नज़र रखें। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 22वें रोज़े की ये बरकत उन लोगों के लिए ख़ास है जो बुखल को छोड़कर अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा रखते हैं। इस स्क्रिप्ट के ज़रिए मैं आपको वो हौसला देना चाहता हूँ कि आप अपनी माली मुश्किलात से घबराएं नहीं, क्योंकि 22वां रोज़ा आपको ये बताने आया है कि आपका रब बहुत बड़ा है। मेरे भाइयों, 22वें रोज़े की दुआ में वो असर है कि ये पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिला सकती है और आपकी मुश्किलात तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए 22वें रोज़े के इन कीमती लम्हात को ज़ाया ना करें और अपनी झोली को रब के हुजूर फैला दें। मुअज़्ज़िज़ सामीन, रिज़्क़ में बरकत का असल राज शुक्रगुजारी में छुपा है और 22वां रोज़ा हमें शुक्रगुजार बंदा बनने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। मेरे भाइयों, इस वीडियो को अपने प्यारों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि 22वें रोज़े की ये गैबी मदद हर घर तक पहुँच सके। 22वें रोज़े की रात जब आप मुसल्ले पर बैठकर अपने रब से सरगोशी करते हैं तो वो लम्हा आपकी तकदीर की तब्दीली का लम्हा होता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 22वें रोज़े की हर घड़ी बरकतों की अमीन है और इस दिन की रूहानियत आपके दिल से तंगी का खौफ निकालकर बेनियाजी पैदा कर देती है। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखे और 22वें रोज़े की बरकत से आपको वो रिज़्क़ अता फरमाए जिसमें बरकत भी हो और सुकून भी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 22वें रोज़े का ये ख़ास पैगाम अपने दिल पर नक्श कर लें कि रिज़्क़ देने वाला सिर्फ अल्लाह है और 22वां रोज़ा इस यकीन को पुख्ता करने का नाम है। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक हम सब को 22वें रोज़े की तमाम पोशीदा बरक़ात समेटने की तौफ़ीक़ अता करे और हमें किसी गैर का मोहताज न करे। आमीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन और मेरे प्यारे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा अपनी तमाम तर रानाइयों और बरकतों के साथ हम पर साया फगा है और 22वें रोज़े की ये पुरनूर सातें उस जादुई असर की शुरुआत हैं जो इंसान की तकदीर को बदल कर रख देता है। क्या आप जानते हैं कि 22वें रोज़े का सूरज गुरूब होते ही कायनात में एक ऐसी तब्दीली आती है जो सिर्फ उन लोगों को महसूस होती है जिनके दिल अल्लाह की याद से लबरेज होते हैं। आखिरी अशरे की ताक रातों का तस्करा तो हर जुबान पर होता है, लेकिन 22वां रोज़ा वो ख़ास मकाम है जहां से उन ताक रातों के अनवारात का इस्तकबाल शुरू किया जाता है। कंजुल ईमान और बहार शरीयत की रोशनी में हमें ये रहनुमाई मिलती है कि रमज़ान के आखिरी 10 दिन जहन्नुम से आज़ादी के दिन है और 22वां रोज़ा इस आज़ादी के सफ़र की वो पहली मंजिल है जहां मोमिन अपने रब के इतने करीब हो जाता है कि उसे लैलतुल क़द्र की खुशबू आने लगती है। मेरे भाइयों, ज़रा इस मंजर का तसव्वुर करें कि जब फरिश्ते आसमान से ज़मीन की तरफ गिरोह दर गिरोह उतरते हैं और उन लोगों को तलाश करते हैं जो 22वें रोज़े की थकावट के बावजूद रात की तन्हाई में अपने रब के सामने सजदा रेज होते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आखिरी अशरे की ताक रातों का जादुई असर कोई अफसाना नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसने करोड़ों इंसानों की जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया और 22वां रोज़ा इस इनकलाब की पहली पुकार है। इस वीडियो को शेयर करना आप पर इसलिए वाजिब है क्योंकि बहुत से मुसलमान सिर्फ 27वीं शब के इंतज़ार में 22वीं और 23वीं जैसी अहम रातों की बरक़ात से महरूम रह जाते हैं। हालांकि 22वें रोज़े की शाम से ही रहमत के दरवाजे इस तरह खोल दिए जाते हैं कि मांगने वाले की झोली भरने में देर नहीं लगती। मेरे भाइयों, आखिरी अशरे की इन रातों में एक ऐसी मक़नातीसी क़ुव्वत है जो गुनाहगारों को भी रहमान की तरफ खींच लेती है और 22वां रोज़ा इस कशिश का नुक्ता आगाज़ है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 22वें रोज़े की फजीलत का ये पहलू कितना हैरान कुन है कि इस दिन की एक एक घड़ी आपको लैलतुल क़द्र की बरक़ात के लिए तैयार कर रही होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरियों में एतिकाफ़ की जो सुन्नत अता फरमाई
उसका मकसद भी यही था कि बंदा दुनिया से कटकर अपने खालिक से जुड़ जाए, और 22वां रोज़ा इस मिलाप की पहली सीढ़ी है। मेरे भाइयों, क्या आपने कभी महसूस किया कि 22वें रोज़े की रात की खामोशी में एक अजीब सा सुकून होता है? ये सुकून दरअसल उन फरिश्तों की आमद की अलामत है जो लैलतुल क़द्र का मुजदा लेकर ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। मौज़िज़ सामीन, इस गुफ्तगू का एक एक हर्फ आपके दिल में इस तड़प को पैदा करेगा कि आप आखिरी अशरे की किसी भी रात को गफलत में न गुजारें। 22वें रोज़े की बरकत से अल्लाह पाक आपके दिल की बंजर ज़मीन को अपनी रहमत की बारिश से सैराब कर देता है, और आपके अंदर वो रूहानियत पैदा होती है जो सिर्फ इनाम याफ्ता बंदों का खासा है। मेरे भाइयों, 22वें रोज़े का पोशीदा राज ये है कि इस दिन की जाने वाली हर नेकी आखिरी अशरे की बरक़ात की वजह से 70 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। ज़रा सोचें कि अगर आप 22वें रोज़े की रात में सिर्फ एक बार दुरूद पाक पढ़ते हैं तो इसका अजर कितना अजीम होगा। मौज़िज़ सामीन, आखिरी अशरे का जादुई असर आपकी रूह को पाकीज़ा बना देता है, और 22वां रोज़ा उस पाकीज़गी का वो आईना है जिसमें आप अपना अक्स देख सकते हैं। मेरे भाइयों, इस कायनात का जर्रा जर्रा 22वीं शब को पुकार उठता है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रिस्क तलब करने वाला। मौज़िज़ सामीन, 22वें रोज़े की ये पुरतासीर नरेशन आपको इसलिए सुनाई जा रही है ताकि आप इन लम्हात की कदर करें जो बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं। लैलतुल क़द्र की तलाश हमें हर रात बेदार रखती है, और 22वां रोज़ा उस बेदारी का वो पहला इनाम है जो रोज़ेदार को अता किया जाता है। मेरे भाइयों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाकर आप भी इस कार्य खैर में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हिदायत का कोई भी रास्ता 22वें रोज़े की बरकत से खुल सकता है। मौज़िज़ सामीन, आखिरी अशरे की ताक़ रातों का फैज़ान हासिल करने के लिए 22वें रोज़े की शाम से ही अपनी नीयत को खालिस कर लें और अपने रब से अहद करें कि ऐ अल्लाह, मैं इन कीमती रातों को तेरी रज़ा के लिए वक्फ़ करता हूँ। मेरे भाइयों, 22वें रोज़े की ये गुफ्तगू सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि एक तड़प है जो आपको लैलतुल क़द्र के अनवारात तक पहुँचाने के लिए लिखी गई है। मौज़िज़ सामीन, अल्लाह पाक हमें आखिरी अशरे की तमाम ताक़ रातों की बरक़ात समेटने की तौफ़ीक़ दे और 22वें रोज़े को हमारी निजात का ज़रिया बनाए। मेरे भाइयों, इस मुबारक महीने के आखिरी दिन हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि वक्त कम है और काम बहुत ज़्यादा, इसलिए 22वें रोज़े की इस पुरनूर फ़िज़ा में ख़ुद को ज़िक्र इलाही में डबो दें। मौज़िज़ सामीन, 22वीं शब का ये जादुई असर आपकी ज़िंदगी के तमाम दुखों का मदावा कर सकता है अगर आप यकीन कामिल के साथ अपने रब को पुकारें। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो और हमें रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी अशरे की तमाम तर सआदतें नसीब फरमाए। आमीन। मौज़िज़ सामीन और मेरे प्यारे भाइयों, 22वें रोज़े की ये आखिरी साआतें हमें उस मकाम पर ले आई हैं जहाँ से जुदाई का एहसास भी शुरू होता है और इनान मिलने की खुशी भी दोबाला हो जाती है। क्या आपने कभी इस कर्ब को महसूस किया है जो रमज़ान के आखिरी दिनों में एक सच्चे मोमिन के दिल में पैदा होता है? 22वें रोज़े का ख़ास पैगाम दरअसल इस तड़प का नाम है कि हमने अब तक क्या खोया और क्या पाया। मेरे भाइयों, 22वां रोज़ा हमें पुकार पुकार कर कह रहा है कि ए गफलत में डूबे हुए इंसान, अब भी वक्त है कि तू अपने रब की तरफ लौट आए, क्योंकि रहमत के दरवाजे अभी खुले हैं और मग़फ़िरत की घड़ियाँ अभी बाकी हैं। कंजुल ईमान की रूह परवर तिलावत और बहार शरीयत के ईमान अफरोज़ मसाइल हमें ये बताते हैं कि 22वें रोज़े का असल मकसद अपने अंदर वो तब्दीली लाना है जो रमज़ान के बाद भी कायम रहे। मौज़िज़ सामीन, इस वीडियो का ये हिस्सा सबसे अहम है क्योंकि यहाँ हम उस क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपकी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। 22वें रोज़े का पोशीदा राज ये है कि अल्लाह पाक उस दिन अपने बंदों की उन दुआओं को भी कबूल फरमा लेता है जो शायद सारा साल नामुकम्मल रही हों। मेरे भाइयों, ज़रा सोचें कि अगर आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी 22वां रोज़ा हो तो क्या हम इस हाल में अपने रब के सामने जाने के लिए तैयार हैं? ये सवाल नहीं बल्कि एक ताज़ियाना है जो हमारे सोए हुए ज़मीर को बेदार करने के लिए काफ़ी है। मौज़िज़ सामीन, इस गुफ्तगू को शेयर करना आपका वो इखलाकी फ़रीज़ा है जो किसी की डूबती हुई किश्ती को पार लगा सकता है, क्योंकि जब आप 22वें रोज़े का ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो आप दरअसल नेकी की ज़ंजीर का हिस्सा बन जाते हैं जिसका सिरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बारगाह से मिलता है। मेरे भाइयों, 22वें रोज़े का ख़ास क्लाइमैक्स ये है कि इस दिन की शाम फरिश्ते आपके घरों के चक्कर लगाते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा घर ज़िक्र इलाही से मुनव्वर है और किस घर में अभी तक गफलत का डेरा है। मौज़िज़ सामीन, 22वें रोज़े का ये पैगाम मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम है। इस दिन हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए जो गुर्बत और इफलास की वजह से सहरी और इफ्तारी की नेमतों से महरूम हैं। मेरे भाइयों, 22वें रोज़े की करामत तभी जाहिर होगी जब आपका दिल दूसरों के दुख में तड़पने लगेगा।
ذرا तसव्वुर करें कि 22वीं शब की वो आखिरी घड़ी जब दुआ की कबूलियत का परवाना जारी होता है और आपका नाम उन लोगों में लिख दिया जाता है जिनसे अल्लाह राजी हो गया, तो इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। मौजिज़ सामईन, 22वें रोज़े का ये स्क्रिप्ट एक ऐसी हकीकत है जो आपको दुनिया की रंगीनियों से निकाल कर आखिरत की अबदी खुशियों की तरफ ले जाएगा। मेरे भाइयों, हम अक्सर दुनियावी फ़ायदों के लिए दौड़ते हैं, लेकिन 22वां रोज़ा हमें सिखाता है कि असल फ़ायदा तो उस वक्त होगा जब हम कब्र की पहली रात में सुरखरू होंगे। इस वीडियो के ज़रिए मेरा मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं, बल्कि आपके ईमान की शमा को इस तरह रोशन करना है कि वो कभी ना बुझे। मौजूद सामीन, 22वें रोज़े का ख़ास पैगाम ये भी है कि हमें अपने इखलाक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना के मुताबिक ढालना होगा, क्योंकि रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं बल्कि ज़ुबान, आँख और कान का भी होता है। मेरे भाइयों, 22वें रोज़े की बरकत से अल्लाह पाक हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और हमें इस काबिल बनाए कि हम लैलतुल क़द्र की हकीकी लज्जत को पा सकें। मौजूद सामीन, रमज़ान का ये आखिरी अशरा एक तेज़ी से गुजरता हुआ बादल है जो 22वें रोज़े की सूरत में आप पर बरस रहा है। अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप अपनी झोली कितनी भरते हैं। मेरे भाइयों, 22वें रोज़े का ये ख़ास क्लाइमैक्स हमें उस अहद की याद दिलाता है जो हमने रोज़े अव्वल अपने लब से किया था कि ए इलाही, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे और तुझ ही से मदद चाहेंगे। मौजूद सामीन, इस पैगाम को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर इस नीयत से शेयर करें कि शायद आपकी वजह से कोई एक शख्स भी तहज्जुद के लिए खड़ा हो जाए और उसकी आहोजारी आपकी बख्शिश के जरिया बन जाए। मेरे भाइयों, 22वें रोज़े की शाम जब हम इफ्तार के लिए बैठते हैं तो वो खामोशी दरअसल अल्लाह की बड़ाई का एतराफ़ होती है। मौजूद सामीन, 22वें रोज़े का ये सफ़र अब यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि ये तो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ है जिसमें तकवा हो, परहेज़गारी हो और अल्लाह का खौफ हो। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए और आपके घरों को अमन व सुकून का गहवारा बनाए। मौजूद सामीन, 22वें रोज़े की ये पुरतासीर गुफ्तगू हमेशा याद रखें कि अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है और वो अपने बंदे की वापसी का मुंतज़िर रहता है। मेरे भाइयों, 22वें रोज़े का ये ख़ास पैगाम अपने दिल की गहराइयों में महफूज कर लें और दूसरों तक पहुँचाकर सवाब दारैन हासिल करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो और हमें दोबारा ऐसे बाबरकत महीने देखना नसीब फरमाए। आमीन। मौजूद सामीन और मेरे प्यारे भाइयों, 22वें रोज़े की ये पुरस्रार घड़ियाँ अपने दामन में वो छुपी हुई निशानियाँ लेकर आती हैं जिनका मुशाहिदा सिर्फ वो खुश नसीब आँखें करती हैं जो ज़िक्र इलाही की मिठास से आशना होती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि 22वें रोज़े की मखसूस दोपहर में जब सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा होता है तो अचानक फ़िज़ा में एक ऐसी ठंडक का एहसास क्यों होता है जो रूह को सरशार कर देता है। औलिया अल्लाह और अल्लाह के मुकर्रब बंदे इस पोशीदा निशानी को लैलतुल क़द्र के इस्तक़बाल का इशारा करार देते हैं। कंजुल ईमान के गहरे मुताले से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत की निशानियां कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में बिखेर दी हैं और 22वां रोज़ा वो ख़ास वक्त है जब ये निशानियां अपने उरूज पर होती हैं। मौज़े सामीन, ज़रा इस मंज़र का तसव्वुर करें कि 22वें शब को जब आसमान के सितारे एक ख़ास तरतीब के साथ चमकते हैं तो वो दरअसल ज़मीन वालों को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि रहमत का ख़जाना अब बटने वाला है। मेरे भाइयों, बहार शरीयत की रोशनी में हमें ये सबक मिलता है कि रोज़ेदार की हर हरकत तस्बीह में शुमार होती है, मगर 22वें रोज़े की इस पोशीदा निशानी का जिक्र बहुत कम लोगों तक पहुँचा है और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि क्या मालूम आपकी एक शेयरिंग से किसी भटके हुए इंसान को वो निशानी मिल जाए जो उसे रब के करीब कर दे। मौजूद सामीन, अल्लाह के नेक बंदे फरमाते हैं कि 22वें रोज़े की शाम जब परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे होते हैं तो उनकी चहचहाहट में एक ख़ास किस्म का सुकून होता है जो आम दिनों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मेरे भाइयों, ये वो रूहानी अलामतें हैं जो सिर्फ उन लोगों पर जाहिर होती हैं जिन्होंने अपने नफ्स को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर दिया हो। ज़रा सोचें कि 22वें रोज़े की इस ख़ास घड़ी में जब आप मुसल्ले पर बैठते हैं तो आपको अपने इर्द गिर्द एक ऐसी खुशबू का एहसास होता है जो दुनिया के किसी अतर में मौजूद नहीं। ये खुशबू उन नूरी मखलूक़ात की होती है जो लैलतुल क़द्र के अनवारात लेकर ज़मीन पर उतरना शुरू कर देते हैं। मौजूद सामीन, इस गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ आपके ईमान को उस मकाम पर ले जाएगा जहां आपको कायनात की हर चीज़ में अल्लाह का नूर नज़र आने लगेगा। 22वें रोज़े की ये पोशीदा निशानी दरअसल आपके दिल की सफाई का इम्तिहान है। जितना आपका दिल साफ होगा उतनी ही जल्दी आप इन रूहानी इशारों को समझ पाएंगे। मेरे भाइयों, इस कायनात का निज़ाम बेमकसद नहीं चल रहा और 22वें रोज़े की ये मखसूस अलामात हमें आने वाली अजीम रात की तैयारी का हुक्म देती हैं। मौजूद सामीन, आपने अक्सर सुना होगा कि रमज़ान का आखिरी अशरा बहुत बरकत वाला है, लेकिन 22वें रोज़े की इस मुनफरिद निशानी के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे,
क्योंकि ये वो वक्त है जब अर्श के पाए हिलने लगते हैं और फरिश्ते ज़मीन पर सजदा रेज होने वालों की फहरिस्त मुकम्मल कर रहे होते हैं। मेरे भाइयों, इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि हम इस निशानी को पाने का वो खास तरीका भी बताएंगे जो हमारे असलाफ की जिंदगियों का निचोड़ है। मोअज़्ज़िज़ सामईन, 22वें रोजे की इस नूरानी फिजा में जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं तो आपकी पुकार सातों आसमान चीर कर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचती है, और ये सब इसीलिए मुमकिन होता है क्योंकि 22वां रोजा रूहानियत का वो दरवाज़ा है जो कभी बंद नहीं होता। मेरे भाइयों, 22वें रोजे की इस पोशीदा निशानी का ताल्लुक आपकी नीयत के इखलास से है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आपको ख्वाब में भी ऐसी बशारतें मिल सकती हैं जो आपकी जिंदगी का रुख बदल दें। मोअज़्ज़िज़ सामईन, अल्लाह पाक ने 22वें रोजे को एक ऐसी खुसूसियत अता की है जो किसी और दिन के हिस्से में नहीं आई, और वो ये है कि इस दिन की दुआ सीधी अर्श पर दस्तक देती है। मेरे भाइयों, इस ईमान अफरोज पैगाम को फैलाएं ताकि हर मुसलमान इस बेदारी का हिस्सा बन सके जो 22वें रोजे की असल रूह है। 22वें रोजे की शाम का वो खामोश मंजर जब सूरज ढलता है तो कायनात की हर चीज सजदे में गिर जाती है, और ये वो निशानी है जिसे सिर्फ मारिफत इलाही रखने वाले ही पहचान पाते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामईन, अल्लाह पाक हमें इन बसीरत वाली आंखों से नवाजे जो अनवारे इलाही का मुशाहिदा कर सकें और हमें 22वें रोजे की लाज रखने की तौफीक दे। मेरे भाइयों, आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया की आसाइशें हासिल करना नहीं बल्कि उस नूर को पाना है जो 22वें रोजे की इन पोशीदा निशानियों में छुपा है। मोअज़्ज़िज़ सामईन, 22वें शब की वो मखसूस साआतें जब हवा थम जाती है और हर तरफ एक अजीब सा नूर फैल जाता है, वही असल वक्त होता है जब रब की रहमत जोश में होती है। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक हम सबको 22वें रोजे की इन तमाम अलामात को समझने और इनसे फैज़ हासिल करने की हिम्मत अता फरमाए और हमारी हर जायज़ ख्वाहिश को 22वें रोजे के सदक़े पूरा फरमाए। आमीन। मोअज़्ज़िज़ सामईन और मेरे प्यारे भाइयों, आज की इस गुफ्तगू का ये हिस्सा आपके दिलों को हिला कर रख देगा, क्योंकि अब हम उस मंजिल का जिक्र करने जा रहे हैं जहां हर इंसान को तन्हा जाना है, यानी कब्र की पहली रात और 22वें रोजे का वो अनोखा ताल्लुक जिसने बड़े बड़े गुनहगारों की तकदीर बदल दी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब अंधेरी कब्र में रिश्तेदारों की आवाजें आना बंद हो जाएंगी और मिट्टी का बोझ आपके सीने पर होगा तो उस वक्त कौन सी चीज आपका साथ देगी? मेरे भाइयों, कंजुल ईमान और बहार शरीयत की रोशनी में यह हकीकत वाज़े होती है कि 22वें रोजे की वो तपिश और प्यास जो आपने अल्लाह की रजा के लिए बर्दाश्त की थी, वो कब्र की वहशतनाक गर्मी में ठंडी छांव बनकर नाजिल होगी। मोअज़्ज़िज़ सामईन, 22वें रोजे का ये पोशीदा राज जितना हैरान कुन है इतना ही ईमान अफरोज भी है, क्योंकि रिवायात में आता है कि जो शख्स 22वें रोजे को पूरे तकवे के साथ मुकम्मल करता है, अल्लाह पाक उसके बदले में कब्र के अंधेरे को एक ऐसे नूर से बदल देता है जो सूर फूंके जाने तक उसे रोशनी फराहम करता रहेगा। मेरे भाइयों, जरा इस लम्हे का तसव्वुर करें कि मुनकर नकीर जब आपसे सवाल करेंगे तो 22वें रोजे की बरकत से आपकी जुबान पर कलमा तैयबा ऐसे जारी होगा जैसे बहता हुआ झरना। मोअज़्ज़िज़ सामईन, इस वीडियो को शेयर करना आपकी आखिरत के लिए भी ज़ख़ीरा बन सकता है, क्योंकि अगर आपकी वजह से कोई एक शख्स भी 22वें रोजे की लाज रख ले तो उसकी खबर की आसानी का सवाब आपके नामाए आमाल में भी लिख दिया जाएगा। मेरे भाइयों, 22वें रोजे की भूख दरअसल कब्र की भूख का इलाज है, और उस दिन की प्यास उस जामे कौसर की जमानत है जो क़यामत के तपते हुए मैदान में आपको नसीब होगा। मोअज़्ज़िज़ सामईन, औलिया अल्लाह और अल्लाह के मुक़र्रब बंदे इस पोशीदा निशानी को याद कब्र में रो कर गुजारते थे ताकि जब वो काली कोठड़ी में अकेले हों तो उनका रब उनसे राजी हो। मेरे भाइयों, 22वें रोजे का ये अनोखा ताल्लुक ये है कि इस दिन की जाने वाली हर तस्बीह कब्र के बिच्छुओं और सांपों के खिलाफ एक मजबूत ढाल बन जाती है। क्या आप नहीं चाहते कि जब सब आपको छोड़कर चले जाएं तो आपका रोजा एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में आपके सरहाने आ बैठे और आपको तसल्ली दे के घबराना नहीं, मैं तेरा 22वां रोजा हूँ? मोअज़्ज़िज़ सामईन, ये कोई ख्याली बातें नहीं बल्कि इस ईमान का हिस्सा हैं जो हमें सिखाता है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। मेरे भाइयों, 22वें रोजे की हर सात को गनीमत जाने, क्योंकि ये आखिरी अशरे का वो तोहफा है जो आपको अबदी अजाब से बचा सकता है। जरा गौर करें कि 22वें रोजे की इफ्तारी के वक्त जब आप पानी का पहला घूंट पीते हैं तो उस वक्त अल्लाह पाक जहन्नुम के कितने ही दरवाजे आप पर बंद फरमा देता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस गुफ्तगू का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि इस हकीकत से आगाह करना है कि 22वां रोजा आपके लिए कितना बड़ा सहारा बन सकता है। मेरे भाइयों, इस कायनात का निज़ाम मकाफात अमल पर चलता है और 22वें रोजे की मशक्क़त का बदला अल्लाह पाक कब्र के सुकून की सूरत में अता फरमाता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, 22वीं शब का पोशीदा राज ये भी है कि इस रात की गई इस्तिग़फ़ार कब्र की दीवारों को वसी कर देती है जहां तक इंसान की नजर जाती है। मेरे भाइयों, इस ईमान अफरूज पैगाम को हर उस दिल तक पहुंचाएं जो मौत के जिक्र से डरता है, ताकि उसे मालूम हो सके कि 22वें रोजे जैसी नेकियां मौत के डर को खत्म कर देती हैं।
मौजूद सामीन, 22वें रोजे का ये खास क्लाइमेक्स हमें ये सबक देता है कि हमने आखिरत की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी, क्योंकि रमजान का सूरज ढलते ही हम एक दिन अपने रब के पास लौट जाएंगे। मेरे भाइयों, 22वें रोजे की बरकत से अल्लाह पाक आपकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और आपको मुनकर नकीर के सवालात में कामयाबी अता फरमाए। मौजूद सामीन, इस स्क्रिप्ट के जरिए हमने कोशिश की है कि आपको 22वें रोजे की इन गहराइयों तक ले जाएं, जहां से वापसी पर आपका दिल सिर्फ अल्लाह की याद से लबरेज हो। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो और हमें 22वें रोजे की इन तमाम रूहानी बरक़ात से माला माल करे जो कब्र की पहली रात को रोशन बना देती हैं। आमीन।